Good morning, dear students. Dear students, in the previous class, we have discussed about the different regions of brain. That is, forebrain, midbrain and the hindbrain. Now we are moving on to the next topic, that is the reflex action and reflex arc. We often might have heard or even felt that whenever we touch a very hot object or whenever we observe a scary animal, we just move away from that place. Either we remove our hands or else we move out of that place or run off suddenly. So such type of responses are without our will. ऐसे रिस्पॉन्स जो होते हैं वो हमारी विल के बिना ही हम वो एक्शन करते हैं. व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू इमीडिएटली रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. तो ये हम जो कर रहे हैं वो एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है और ऐसे ही इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस. Sometimes when a light is flashing on your eyes, you immediately put the hand in front of your eyes or else you close your eyes. This is also a sudden response that is being given by your body, by your reflex, that is on flashing of the light. तो ऐसे mechanism को reflex action कहा जाता है. So let us first note down the definition of the reflex action. The reflex action is the reflex action. It is a sudden, involuntary, automatic response to a stimulus without the will of the animal or you can say organism. So a sudden response, sudden तो है ही पर साथ साथ में कैसा है, involuntary है, right? दो इसमें voluntary organs involve होते हैं but response कैसा involuntary है, sudden है. And an automatic response, right? You don't have to remember or try to memorize something before you show an action. It is a sudden, it is an immediate response, right? So such type of immediate response which occurs to a stimulus without the will of the animal is known as the reflex action. Reflexes can be of two types. Either if the reflexes are given by brain, then they are known as cranial reflexes. Okay. So reflex given or reflex in which brain is going to respond, given by the brain, are called cranial reflexes, whereas reflex or response given by spinal cord are the spinal reflexes. तो रिफ्लेक्स जो होता है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है तो वैसे रिफ्लेक्सेस को क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू क्लोज योर आईज सडनली ऑन फ्लैशिंग ऑफ लाइट और watering of the mouth when you see some favorite food, ये रिस्पॉन्स कैसे होने वाले हैं? ये रिस्पॉन्स को हम ऐसा कहते हैं कि क्रेनियल रिफ्लेक्स है क्योंकि इमीडिएटली द सिग्नल गोज टू द ब्रेन एंड कम्स बैक. बट when the response is conducted by spinal, मतलब spinal cord जब involve होता है as a part of central nervous system, तो वैसे reflexes को spinal reflexes कहा जाता है. A reflex arc, मतलब reflex action involves a reflex action involves कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में? तो सबसे पहले तो क्या आएगा? There will be a sensory nerve fiber. What will be there? Sensory nerve fiber. पर sensory nerve fiber receive किससे करेगा? Sense organ से, right? So the very first thing that is getting involved is the sense organ. Sense organ से impulses को carry करना पड़ेगा. तो who is going to carry this impulses from the sense organ to the spinal cord or brain?
that is known as sensory nerve fiber, or you can say efferent nerve fiber. Sensory nerve fiber. Through the sensory nerve fiber, the impulse will be reaching a part of central nervous system. So part of CNS, central nervous system. From the CNS, the response will be taken up by the motor neuron. So motor nerve fiber, motor nerve fiber, and lastly, the motor nerve fiber is going to show its action through a muscle or gland, which is an effector organ. So lastly will be the effector, which can be muscle or gland, right? तो वापस एक बार देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले आ जाएगा एक सेंस ऑर्गन, क्योंकि सेंस ऑर्गन ही वही है जो रिस्पॉन्ड मतलब जो स्टिमुलस रिसीव करता है. द वन हु रिकॉग्नाइजेस द स्टिमुलस इज दैट सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन से नर्व फाइबर्स जो है वो होंगे सेंसरी नर्व फाइबर्स, और सेंसरी नर्व फाइबर्स कहां पे जाएंगे? दे विल बी रीचिंग the part of the central nervous system. So there will be the sensory nerve fibers reaching the central nervous system. This is the structure of the spinal cord. फिर आ जाता है motor neuron, क्योंकि पहले तो CNS आएगा. CNS में impulse क्या होगा? इंटीग्रेट होगा. इंटीग्रेट हो जाने के बाद अब ये रिस्पॉन्स कहां पे जाएगा? मोटर न्यूरॉन, एंड थ्रू द मोटर न्यूरॉन इट विल रीच टू द पर्टिकुलर मसल और ग्लैंड विच इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड. तो एक जो है वो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेगा और फिर दूसरा जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा इन वॉट एवर वे इट इज. सो मसल और ग्लैंड इज इन्वॉल्व. सो दिस पाथ ऑफ reflex action is called reflex arc. What is it known as? reflex arc कहा जाता है. इस पूरे पाथवे को reflex arc कहा जाता है. अगर हम थोड़े एग्जांपल्स की बात करें कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, सो रिमूवल ऑफ हैंड्स ऑन touching hot or cold object, right? Hands remove कर देना when you immediately touch a hot object or a very cold object, या आपको एनिमल देख लेते हो या कुछ पॉइजनस चीज देख लेते हो, डर जाते हो, तो you just run away from that place. That is what a example. Another example is closing of eyes on लाइट फ्लैशिंग. लाइट फ्लैश करने पे इमीडिएटली हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम आंख बंद कर लेते हैं. सो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन. अनदर कैन बी वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग फेवरेट फूड. कुछ अच्छा सा खाने पे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन. Let us label this structure. So this will be the sense organ. I have drawn the structure of the eye over here. Sensory organ, right? जो sensory stimulus को receive करेगा. Now this nerve fiber which is emerging is known as the sensory nerve fiber, or you can say sensory neuron. And this side which is going to the spinal cord is known as dorsal root ganglion. It is known as dorsal root ganglion. Actually क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से जो इमर्ज होने वाला है उस नर्व फाइबर्स को डॉर्सल रूट गैंग्लियन और वेंट्रल रूट गैंग्लियन कहते हैं, क्योंकि एक डॉर्सल साइड से बाहर निकलता है और एक वेंट्रल. ब्रेन में क्या होता है कि नर्व्स होते हैं ब्रेन से इमर्ज होने वाले, इनमें से कई सेंसरी होते हैं, कई मोटर होते हैं और कई मिक्स्ड होते हैं, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों. जबकि यहाँ पे सारे ही नर्व फाइबर्स मिक्स्ड होते हैं. मतलब देयर विल बी इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है. तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है
कि one root is going to emerge from the dorsal side and one is going to emerge from the ventral side. But when they move out, they will be moving in a common passage. एक common track से ये दोनों बाहर निकलेंगे, पर initially क्या है, दो तरफ root ganglions हैं, and these two root ganglions are called dorsal root ganglion and this is the ventral root ganglion. तो यहाँ पे आ गया सेंसरी नर्व फाइबर, यहाँ पे आ गया डॉर्सल रूट गैंग्लियन. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का क्या किया है, क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है. तो स्पाइनल कॉर्ड में ये जो बीच में होल देखने को मिल रहा है उसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल. इट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल. बाहर की तरफ है वो है व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और अंदर जो होता है वो होता है ग्रे मैटर. दिस इज अपोजिट टू अवर ब्रेन. ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बाहर ग्रे था, अंदर व्हाइट था, पर स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है, बाहर व्हाइट मैटर है और अंदर ये जो आपको एच शेप या बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस होल इज नोन एज द ग्रे मैटर. मतलब यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स हैं. दिस स्मॉल न्यूरॉन इन बिटवीन इज नोन एज इंटरन्यूरॉन. इट इज कॉल्ड interneuron, and then after the nerve fiber which we have is the motor nerve fiber, and lastly this structure will be the effector. ये effector कोई भी हो सकता है, कोई muscle हो सकता है, कोई gland हो सकता है, right? It can be any other body part. So that is the whole pathway, and this pathway is called the reflex arc. Another thing is that reflexes जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. Reflexes can be either unconditional or they can be conditioned reflexes. दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं. अनकंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब ऐसे रिफ्लेक्स जो हमें बर्थ से मिले हैं. कई रिफ्लेक्स क्या होते हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है. वी हैव गॉट दोज रिफ्लेक्सेस सिंस अवर बर्थ. फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, राइट, वो एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है जो बर्थ से मिला है. आईज को क्लोज कर देना, इवन इफ इट इज अ स्मॉल किड हु इज अनअवेयर अबाउट व्हाट टू रिस्पॉन्ड टू दैट लाइट, वो भी क्या करेगा, आंख बंद कर ही लेगा. तो ये क्या कहने का मतलब है कि अनकंडीशनल बर्थ से मिले हुए रिफ्लेक्सेस होते हैं. पर जो रिफ्लेक्सेस हम लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, जो हम सीखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहा जाता है. जैसे कि एक बेल के बजने पर डॉग कम्स टू ईट द फूड, तो अब उसने वो रिफ्लेक्स डेवलप कर लिया है, राइट, कि बेल बजने पर यू हैव टू गो फॉर द फूड. सो दैट इज व्हाट, कंडीशनल रिफ्लेक्स. द बेल रिंग्स एंड यू गो आउट ऑफ द क्लास. दिस इज व्हाट, अ कंडीशनल रिफ्लेक्स. ये आपने बिठा लिया है कि बेल बजने पर क्लास के बाहर निकल जाना. तो वो रिस्पॉन्स जो हम सीखते हैं, जो हमारी आगे की जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, दे हैव टू बी लर्न्ड बाय यू. वैसे रिफ्लेक्सेस को क्या कहा जाता है, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहा जाता है. तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो हम बर्थ से मिलते हैं और कंडीशनड रिफ्लेक्स जो हम लाइफ टाइम में लर्न करते हैं, इन दोनों, these two are considered to be the types of the reflex actions. So that is the whole topic of reflex action and reflex arc. In the next lecture, we will begin with the other part of the chapter, that is two sense organs जो हमें पढ़ने हैं, eye and ear.